السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب جو ہم ہیں میراث کے لیکچر نمبر 3 پر ہیں اور اس میں ہم عصبہ کے بارے میں جانیں کہ عصبہ کون ہوتا ہے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بچ جاتا ہے نا میراث کا، وہ عصبہ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، عصبہ کا پرسنٹیج فکس نہیں ہوتی کہ عصبہ کو 1/3 دے دو 1/2 دے دو، نہیں، عصبہ کو بچا ہوا مال ملتا ہے. جتنا بھی بچ گیا وہ عصبہ کو ملتا ہے. تو عصبہ جو ہے نسبی، عصبہ نسبی ہوتے ہیں، عصبہ سببی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے اصحاب الفرائض کو ملا، پھر بچا ہوا مال عصبات کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب الفرائض کو ان کے مقرر حصے دو، پھر جو باقی بچ جائے وہ سب سے قریبی مرد کو دیا جائے. یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی. اب اس کو انشاءاللہ آپ کو اور سمجھ میں آئے گا جب ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ عصبہ ایک ہوتا ہے اور ایک اصحاب الفرائض ہوتے ہیں. دو طرح کے وارث ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں وارث؟ کتنے طرح کے؟ ایک اصحاب الفرائض. ہاں ابھی دوں گی انشاءاللہ، میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی. بس ابھی آپ چلتے رہے ساتھ انشاءاللہ. تو ابھی صرف اتنا دھیان رکھیں کہ دو طرح کے وارث ہوتے ہیں، ایک عصبہ بنتے ہیں اور ایک اصحاب الفرائض ہوتے ہیں. اصحاب الفرائض وہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کی پرسنٹیج ہم کو خود بتا دی ہے. ٹھیک ہے، نمبرز بتا دی اللہ نے. لیکن عصبہ وہ ہوتا ہے جو کہ بچا ہوا مال لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ دھیان میں رکھیں، صرف اتنا. پھر واضح ہے اس کا ہر وہ شخص ہے جو اصحاب الفرائض کے حصہ لینے کے بعد بچا ہوا مال لیتا ہے. اگر وہ اکیلا ہونے کی صورت میں سارے مال کا حقدار ہوتا ہے. تو کسی میت کا کوئی بھی اصحاب الفرائض نہیں ہے، یعنی کسی میت کے وارثوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا مقرر حصہ اللہ نے کیا ہو. تو پھر اس کا مثال کیا ہے کہ دیکھیں، بیٹا جو ہوتا ہے نا، بیٹا وہ ہمیشہ عصبہ بنتا ہے. اس کا حصہ اللہ نے مقرر نہیں کیا کہ اس کو آدھا مال دو، اس کو 1/4 مال دو. بیٹے کے لیے کوئی فکس حصہ اللہ نے نہیں بتایا. تو اگر کسی انسان کا بیٹا ہے تو وہ ہمیشہ کیا بنتا ہے؟ عصبہ. تو اگر ایک انسان کا صرف ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور بیٹی بھی نہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، تو ماں باپ بھی ہے، بہن بھائی ہے، لیکن صرف ایک بیٹا ہے. لیکن چونکہ بیٹا ہے تو اس لیے وہ سارا مال لے جائے گا. ٹھیک ہے، ماں باپ کا حصہ نکالنے کے بعد اس کو بیٹا اپنا سارا مال لے جائے گا. ماں باپ جو ہیں ان کا اللہ نے حصہ مقرر رکھا ہے. بیٹیوں کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن بیٹے کا حصہ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے. یہ انشاءاللہ تفصیلات ساری میں آگے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگ صرف غور سے سنتے رہے جو میں کہہ رہی ہوں، کہ یہ انشاءاللہ میں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا یہ پورا. لیکن آپ کو سمجھنا یہاں پر کیا ضروری ہے کہ عصبہ کیا ہوتا ہے اور اصحاب الفرائض کیا ہوتے ہیں. یہ بات کلیئر ہوگی؟ عصبہ کیا ہے؟ عصبہ بچا ہوا مال لیتا ہے. اور اصحاب الفرائض کون ہے؟ جو جن کا حصہ اللہ نے بتایا ہے. بس اتنا یاد رکھیں ابھی. ٹھیک ہے، عصبہ کیا ہوتا ہے؟ اب کلیئر ہے سب کے لیے عصبہ کیا ہوتا ہے؟ عصبہ بچا ہوا مال لیتا ہے. اور اصحاب الفرائض کیا ہوتے ہیں؟ جن کا حصہ اللہ نے فکس کیا ہے. بس اتنا یاد رکھیں. صحیح ہے، اتنی بات سب کے لیے کلیئر ہے کہ عصبہ اور اصحاب الفرائض میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب دیکھیں، صاحب فرض کو مقدم رکھنے کی وجہ. اب جب مال تقسیم ہوتا ہے تو اصحاب الفرائض جو ہوتے ہیں نا، دیکھیں مثال کے طور پر کسی انسان کی کے ماں باپ بھی ہے جو کہ اصحاب الفرائض ہے. ٹھیک ہے، اور کسی انسان کا بیٹا بھی ہے جو کہ عصبہ ہے. تو پھر بیٹے کا حصہ بعد میں نکلے گا. پہلے جن کا فکس حصہ ہے نا کہ مال کا اتنا پرسنٹیج اس کو دے دو، اتنا ان کو پہلے دیں گے اور پھر بچا ہوا مال عصبہ لے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ نہیں کہ عصبہ کو پہلے دے دیں اور پھر حصے مقرر، اس لیے کہ وہ تو پھر ہوگا ہی نہیں مال پورا. اگر کوئی لے جائے گا تو پھر کسی کو دینے کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں. اس لیے جن کے فکس حصے ہیں ان کا مال پہلے نکلے گا. ٹھیک ہے، اچھا. اب قرآن میں
देखिए अल्लाह ने जो हिस्से मुकर्रर किए उसके बारे में हमें क्या पता चलता है कि फरूज फर्ज की जमा है, ठीक है। तो फर्ज क्या है, लुगत में इसके कई मानी है, जिनमें से चंद एक ये है तरफ, यानी कि कोई एक साइड, ठीक है। नहीं बेटा बेटा जो है ना, बेटा असहाबुल फराइज में नहीं है, बेटा सिर्फ उसका बनता है, मगर बेटियां जो है वो असहाबुल फराइज में होती है, बेटा सिर्फ उसबा होता है, ठीक है। हाँ अच्छा, फुरूज फर्ज की जमा लुगत में इसकी तो तर्ज क्या होता है, एक साइड, काटना, तायुन करना, ये सारे मानी है लुगत में इसके, ठीक है। फर्ज के उतारना, वाज़े करना और हलाल करार देना, ये सारे मानी है फर्ज के। तो इल्म मीरास की इस्तिलाह में फर्ज जो है वो मफरूज के मानी में इस्तेमाल होता है। कुरान में मजीद में कुल 6 फरूज है, यानी कि एक हिस्सा जो होता है ना, जैसे निस्फ रुबु सुमन, निस्फ होता है आधा, चौथाई, आठवां, 2/3, तिहाई, छठा, इन सबको क्या कहते हैं, फरूज, ठीक है। फरूज ये सारे हिस्से हैं जो कुरान में जिक्र किए गए। कुरान में अल्लाह ताला ने आधा जिक्र किया है, चौथाई किया है, आठवां किया है, 2/3 किया है, और तिहाई और सुदुस, ये सारे हिस्से अल्लाह ने कुरान में बताए हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक जो है वो उलमा ने इज्तिहाद से बनाया है एक हिस्सा। तो यानी कि कुरान में 6 हिस्सों के जिक्र हैं और एक हिस्सा जो है वो उलमा ने इज्तिहाद से किया है, जिसको कहते हैं सुलुसु बाकी, सुलुसु मा बाकिया, ठीक है। तो ये जो है ना, इंशाल्लाह इसको मैं आगे तफसील बताऊंगी। और ये हिस्सा जो होता है ये माँ को उस सूरत में मिलता है, 2 सूरतों में माँ को मिलता है, ठीक है। यानी किसी मैयत की माँ हो, ठीक है, इसकी माँ हो और इसका शोहर हो या बीवी हो, ठीक है, और माँ बाप हो, शोहर और बीवी हो, लेकिन औलाद ना हो। तो अगर शोहर मर गया, शोहर की माँ बाप थे और औलाद नहीं थी, बीवी थी, बीवी मर गई, बीवी का शोहर था, ठीक है, और औलाद नहीं थी और माँ बाप थे, उस सूरत में सुलुस बाकी इस्तेमाल होता है। उसको मैं तफसील आप आगे बताऊंगी, इसके लिए आप कंफ्यूज ना हो। ये जो है चौथा, ये जो सुलुस बाकी जो है वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इसको अपने इज्तिहाद से मुकर्रर किया था। जब इनके ज़माने में ऐसा किस्सा सामने आया, ऐसा मामला सामने आया कि एक आदमी मरा, ठीक है, नहीं हाँ, एक औरत मर गई, उसका शोहर था और उस औरत के माँ बाप थे। तो उसके तड़के की तकसीम में मसला पैदा हो गया कि कैसे करें। तो फिर हजरत उमर ने ये फैसला दिया था, इस वजह से इसको उमरतैन कहते हैं। इस फैसले को उमरतैन, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से ही इस फैसले को मशहूर किया गया है, ठीक है। और फिर बाकी के उलमा ने उसको कबूल किया है। इस्लाम में आज यही राइज है, इसको बहुत से उलमा इसको कबूल करते हैं, ठीक है, बल्कि मेजोरिटी जो है वो इस हिस्से को कबूल करते हैं। तो ये कितने हिस्से हो गए, 6 हिस्से तो कुरान ने मुकर्रर किए और एक हिस्सा हजरत उमर ने अपने इज्तिहाद से किया, जिसको तमाम मुसलमानों के उलमा ने इसको कबूल किया है, ठीक है। तो 7 तरीके से हिस्से निकाले जाते हैं अस्हाबुल फराइज के। ये बात क्लियर है कि जितने भी अस्हाबुल फराइज हैं उनके 8 तरीके से हिस्से मुकर्रर हैं, 7 तरीके से। 6 तरीके कुरान में जिक्र किए गए हैं और एक तरीका हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इज्तिहाद से है, जिसको उलमा ने इसको कबूल किया है, ठीक है। इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो। देखिए अगर कंफ्यूजिंग लगेगा भी ना तो भी कुछ बातें आपको इंशाल्लाह जरूर फायदा देंगी और आपको इससे इंशाल्लाह एक अवेयरनेस हो जाएगी, ठीक है ना। आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं इंशाल्लाह, चले। अच्छा, तो अब कितने लोग हैं, कितने रिश्ते हैं जिनको अस्हाबुल फराइज कहा जाता है, यानी कि अल्लाह ताला ने उनके उन रिश्तों के नाम ले लेकर कह दिया कि फलां का इतना हिस्सा, फलां का इतना हिस्सा, वो कितने लोग हैं, ठीक है। तो वो कुल कितने हैं,
4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं जिनका नाम लेकर अल्लाह ने, उन रिश्तों का नाम लेकर अल्लाह ने उनके हिस्से मुकर्रर कर दिए, ठीक है। तो इसमें से 4 मर्द है, कौन से मर्द है? खाविन का हिस्सा मुकर्रर किया है अल्लाह ने खुद से, ठीक है। बाप का हिस्सा भी अल्लाह ने मुकर्रर किया है, दादा का हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया है, और अखियाफी भाई कौन होते हैं? किसी को पता है अखियाफी भाई कौन होते हैं? नहीं, देखिए किसी की माँ तो एक हो, ठीक है, मगर बीवी औरत ने पहले शौहर से कुछ भाई हो, कुछ बेटे हो पहले शौहर से, और फिर बेटे बेटियां हो, और फिर दूसरे शौहर से कुछ बेटे बेटियां हो, तो ये जो बहन भाई जो बनते हैं इस तरह से कि माँ एक है बाप अलग अलग है, तो उनको अखियाफी बहन भाई कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो अल्लाह ताला ने उन बहन भाइयों का हिस्सा मुकर्रर रखा है जो कि माँ की तरफ से बहन भाई बनते हैं, और जो बाप की तरफ से बनते हैं उनको अल्लाती कहते हैं, अल्लाती, ऐन लाम अलिफ ता, अल्लाती, ठीक है। उनको वो अस्हाबुल फराइज में नहीं है, वो उसबा में है, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी, उनका हिस्सा है, वो अल्लाह की बहन का हिस्सा है, मैं आगे इंशाल्लाह बताती हूँ। अच्छा, औरतें, कितनी औरतें हैं जिनका अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर किया है? अखियाफी बहन भाई, एक तो अखियाफी बहन भाई है, फिर बीवी है, माँ है, दादी है, नानी है, बेटी है, पोती है, सगी बहन है, और अल्लाती यानी कि पिदरी बहनें हैं, ठीक है, भाई नहीं। अल्लाती बहन का हिस्सा होता है, भाई का नहीं हिस्सा होता, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान में जरूर रखें कि ये सारे, किसी भी मैयत के ये सारे अचानक से नहीं बन जाते रिश्तेदार, सारे वारिस नहीं बन जाते हर वक्त, है ना। वारिसों में अगर ऐसा होता है कि ये औलाद है तो फिर बहन भाइयों को नहीं मिलता, ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन एक नहीं है, अगर औलाद नहीं है तो फिर बहन भाई खुद ब खुद पिक्चर में आ जाते हैं, और पोता पोती खुद ब खुद आ जाते हैं, इस तरह से होता है। लेकिन ये टाइटल जिनके होते हैं उनके पास चांसेस होते हैं कि वो हिस्सा पा सकते हैं, ये जरूर याद रखें, ठीक है, कि ये असहाबुल फराइज बन सकते हैं, ठीक है, अगर उनको कोई चीज आड़े ना आ रही हो, कोई और रिश्ता बीच में ना आ रहा हो, तो ये लोग हैं जो कि असहाबुल फराइज बन सकते हैं। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? किसी का टेक्स्ट नहीं आ रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, ठीक है, इसके सारे रिश्ते मौजूद है, इसके खाविन भी है, बाप भी है, भाई भी है, दादा भी है, और इसके कुछ अखियाफी भाई भी हैं, कुछ अखियाफी बहनें भी हैं, उसके बीवी भी है, माँ भी है, दादी भी है, नानी भी है, सब है, ठीक है। तो क्या उसके माल को सब लोगों में एक साथ तकसीम किया जाएगा जब वो मरेगा? तो नहीं, उसको देखा जाएगा कि जो करीबी रिश्तेदार हैं, यानी कि इसके पहले, सबसे पहले इसके औलाद देखी जाएगी। अगर औलाद है तो फिर भाई बहन सारे महरूम रह जाएंगे, ठीक है, फिर उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो ये सिर्फ इसलिए इनके हिस्से मुकर्रर है कि जब एक नहीं है, अगर औलाद नहीं है तो फिर बहन भाई खुद से आ जाएंगे, लेकिन जब खुद से आएंगे तो उनका हिस्सा मुकर्रर है सब, ठीक है, अल्लाह ताला ने उनका हिस्सा मुकर्रर रखा है, ये मतलब है, ठीक है, समझ में आई ना? इंशाल्लाह ये आगे चलते चलते और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर अस्हाबुल फराइज की 2 किस्में हैं। अव्वलन अस्हाबुल फराइज नस्बी, सबबी, और जो सबब से बनते हैं अस्हाबुल फराइज वो खाविंद और बीवी है। हाँ, औलाद की मौजूदगी में माँ बाप हिस्सेदार बनते हैं मगर बहन भाई नहीं बनते, ठीक है। हाँ, जब एक बाप हो, माँ अलग अलग हो, तो वो अस्हाबुल फराइज में वो भाई नहीं आते मगर बहनें आ जाती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसको आप लोग फिक्र नहीं करें, समझ में आता जाएगा आपको, इंशाल्लाह मैं आगे नीचे चल के
एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, तो असहाबुल फराइज जो है उसमें शोहर और बीवी जो होते हैं वो सबब की वजह से, यानी कि निकाह के सबब की वजह से बनते हैं, तो इनको सबबी कहते हैं, ठीक है। और जो जो नसब की वजह से बनते हैं, जैसे कि औलाद हैं, वालिदैन हैं, पोता पोती हैं, उनको असहाबुल फराइज क्यों कहते हैं? नसबी कहते हैं, इसलिए कि नसब की वजह से ये अपना हिस्सा इनका मिलता है इनको, ठीक है। तो ये बात तो आसान है इंशाल्लाह। लेकिन बेटा जो है वो कभी भी असहाबुल फराइज में नहीं होता, बेटे का कोई हिस्सा फिक्स नहीं है, वो हमेशा बचा हुआ माल लेता है। अगर कोई और माँ बाप भी नहीं है, कोई बहन भी नहीं है, तो फिर भाई ही पूरा माल ले जाएगा, सॉरी बेटा ही पूरा माल ले जाएगा। बेटा जो है वो हमेशा उसबा बनता है। अच्छा, किसी मैयत के तरके की तफसील में असहाबुल फराइज के बाद मंदरजा झेल असबात में से कोई इसबा हो सकता है। अब जिस तरह असहाबुल फराइज हमने पढ़े, कितने थे असहाबुल फराइज, कितने बन सकते थे? 4 मर्द और कितने होते? हाँ 8 होते, 12 थे। इसी तरह उसबा बेटा तो होता है, लेकिन कुछ और लोग भी उसबा बन सकते हैं। अगर बेटा मौजूद ना हो तो फिर पोता होता है तो वो भी उसबा बन सकता है। बेटा मौजूद ना हो तो बाप उसबा बन सकता है, दादा उसबा बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बेटा जिंदा है तो फिर बाप, पोता, भाई, ये कोई भी उसबा नहीं बन सकते, ठीक है। यानी कि जब करीब रिश्ता जो होता है वो अगर मौजूद है तो दूर के रिश्ता फिर सामने नहीं आता, फिर दूर के रिश्ते को महरूम रह जाता है वो। अगर करीब का, जैसे बेटा मौजूद है तो पोता महरूम रह जाता है, ठीक है। बाप मौजूद है तो बहन भाई महरूम हो जाते हैं, सही है, समझ में आया? बाप मौजूद है तो दादा और बहन भाई महरूम हो जाते हैं। बेटा मौजूद है तो बेटे की औलाद महरूम हो जाती है। इस तरह से होता है, जो करीब तरीन है वो हिस्सा पाता है। अच्छा, फिर उस बात जो है इनके अहकाम, उस बात के दरमियान तफसील मेरासी मैयत का करीब बाइट पर मुकद्दम होगा। यानी कि जितना करीबी रिश्ता है, अगर जैसे मैंने अभी समझाया कि बेटा जो है अगर मौजूद है तो पोता फिर दूर हो जाता है, फिर बेटा ही उसका बनता है, ठीक है। बेटा मर गया तो फिर पोता उसका बनता है, ठीक है। इस तरह से होता है। इसी तरह अगर देखिए एक इंसान के औलाद तो नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, ठीक है, मगर इसके भाई रिश्तेदार, इसके भाई मौजूद है वारिस, तो अगर भाइयों में इसके कुछ भाई तो हकीकी भाई है, कुछ सगे भाई है, कुछ जो है ऐसे हैं कि बाप की तरफ से भाई बन रहे हैं, माँ अलग है, तो फिर अगर इस सूरत में हकीकी भाई तो उसबा बनेंगे, लेकिन सिर्फ जो जिनका बाप कॉमन है वो महरूम रह जाएंगे, इसलिए कि उनका जो रिश्ता है वो कमजोर है बनिस्बत हकीकी भाइयों के। बात समझ आई? किसी इंसान के माँ बाप मौजूद नहीं है और इसकी औलाद भी नहीं है, इसके 2 भाई हैं, एक भाई सगा भाई है, ठीक है, एक भाई ऐसा है कि बाप तो दोनों का एक है, माँ अलग है, तो फिर उस सूरत में उसबा बनकर जो इसका सगा भाई है वो सारा माल ले जाएगा, और जो बाप की तरफ वाला भाई है वो महरूम रह जाएगा। क्यों? कि सगे भाई का रिश्ता ज्यादा मजबूत है। समझ में आई बात? चलो अब देखें, इसकी मिसाल कहाँ है? कुरान में इसकी दलील मिलती है, सॉरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, कुरान में नहीं हदीस में फरमाया, इन्ना आया ना बनिल उम्मी यतवारसूना दूना बनिल अल्लाती, यानी आईनी हो तो वारिस होंगे, ना के अल्लाती, यानी सगे भाई मौजूद होंगे, तो फिर जो बाप की तरफ से भाई है वो महरूम हो जाएंगे, सही। ये हदीस का मिलता है दलील। अच्छा, जब उसबा असहाबुल फराइज के साथ मिलकर आते हैं तो उसबा को असहाबुल फराइज से बचा हुआ तरफा मिलता है, यानी कि पहले जिनके हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किया उनको हिस्सा मिलेगा, इसके बाद बचा हुआ माल जो है वो उसबा को मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर बाप भी मौजूद है, माँ भी मौजूद है और एक आदमी का बेटा भी है,
तो पहले माँ बाप का हिस्सा निकाला जाएगा, फिर बेटा बचा हुआ माल लेगा। ये नहीं कि बेटे को पहले देंगे, ठीक है। पहले माँ बाप का जो फिक्स हिस्सा अल्लाह ने रखा है उसको निकाल के फिर बेटे को बचा हुआ माल देंगे। अच्छा, फिर पहले असाउल फराइज के उनके मुकर्रर हिस्से दो, फिर बच जाए इसका हकदार मैयत का करीब तरीन मर्द होगा, ठीक है। फिर नंबर 4 इसका उस बात का रूल ये है कि उस बात अकेला हो तो तमाम तरका समेट लेगा। अब देखिए, अगर तो एक आदमी के बेटा 2 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, ठीक है, बेटी कोई नहीं, ठीक है, सपोज, तो उसके माँ बाप हैं और 4 बेटे हैं, तो पहले माँ बाप का हिस्सा निकला, फिर जो माल बचा फिर 4 बेटों में इक्वली तकसीम होगा। 4 हकीकी बेटे होने चाहिए। अगर 4 हकीकी बेटे हैं तो फिर माल चारों बेटों में बराबर बराबर तकसीम होगा। ये समझ में आ गया? तो चारों उसबा बनेंगे और पूरे माल जो बचा हुआ है उसमें से सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। सही? आप लोग बोर तो नहीं हो गए ये सारी कॉम्प्लेक्स बातों से? बोझल हो रहा है आपके लिए ये? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। असल में देखिए, कुछ ना कुछ आपको काम आएगा जरूर इंशाल्लाह, है ना। अगर आप लोग सुनेंगे तो कुछ ना कुछ काम आएगा। इससे कम से कम आपको इतना पता होगा कि विरसे के किसी के विरसे को तकसीम करने के लिए इल्म लेना हासिल करना जरूरी होगा जब किसी के खानदान में ऐसी नौबत आएगी। अच्छा अच्छा, सही। चले माशाल्लाह, रौनक है घर में। अच्छा, अगर उस बात मर्द और औरतें, हाँ नहीं, इसलिए कि देखिए टेक्निकल बातें ना सारी, तो इस नॉर्मल के इंसान को थोड़ा सा बोझलपन होने लगता है थोड़ी देर के बाद, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को ये बात जो है ना फायदा जरूर देगी इंशाल्लाह। और आप लोग दोबारा रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे अगर जरूरत होगी तो फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा इंशाल्लाह। और वैसे भी मैंने बताया कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आलिम बनाया जाए कि अब आपके पास लोग फतवा लेकर आए कि आप हमारे माल की तकसीम करें। ये मकसद नहीं है इसका। इसका मकसद क्या है कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि ये इल्म क्या है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं ना ऐसे करूंगी, वैसे भी क्लास का टाइम का होने वाला है, मैं थोड़ा सा बीच में से स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। तो जब इसकी तकसीम की तफसील आने लगेगी तो मैं स्टॉप कर दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, जब असहाबुल फराइज को तकसीम का खत्म हो जाएगा तो उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए, अगर तो एक इंसान के माल इतना है कि बहन को हिस्सा मिल गया, माँ बाप को हिस्सा मिल गया, ठीक है, बहनें ज्यादा थी, बहनों 4-5 बहनें थी और माँ बाप थे, अब उनको सबको हिस्सा मिल गया। उसका कोई बेटा नहीं था, लेकिन उस आदमी का जो वारिस बन रहा था, एक सेकंड, ओके इंशाल्लाह। मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह इसको स्टॉप करूंगी। अच्छा, सपोज भाई, आमतौर पर अगर बेटा नहीं हो, बाप नहीं हो, तो भाई उसका बनता है, ठीक है। बाप की तरफ का भाई होता है वो पहले फिर आ जाता है। लेकिन हुआ ये कि सारा माल जो था वो इसकी बेटियों में और इसके माँ में तकसीम हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो भाई, हालांकि उस बात तो बन रहा था, लेकिन अब उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि डिपेंड करता है उसबा के लिए, जो कि बचा हुआ माल उसबा लेता है, तो अगर इतने असहाबुल फराइज है कि उनको हिस्सा देते देते उसबा के लिए कुछ नहीं बचा तो फिर उसबा को कुछ नहीं मिलेगा, सही है। इसी के फराइज जिनका हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया है वो देना लाजमी है। लेकिन चूंकि बेटा कभी महरूम नहीं हो सकता, क्यों नहीं होता कि देखिए, बेटा जब होता है तो बाप भी उसका नहीं बनता और भाई भी नहीं बनते, सिर्फ फिर इस सूरत में बेटे के लिए हमेशा कुछ ना बच जाता है, ठीक है, माल। तो बेटा कभी महरूम नहीं रहता अपने बाप की विरासत से। अच्छा, अब देखिए आगे जो है ना, मैंने तफसीलात जिक्र की है, यानी कि
कुछ जैसे अगर बाप है, खाविंद है, तो किन किन सूरतों में इसको कितना हिस्सा मिलेगा। मिसाल सिर्फ दे देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। देखें, अगर खाविंद है तो बीवी की कोई औलाद नहीं है, ठीक है, बीवी मर गई, बीवी की कोई भी औलाद नहीं है और खाविंद सिर्फ है और उसके माँ बाप वगैरह चाहे हो, लेकिन फिर खाविंद का क्या हिस्सा होगा? आधा होगा। बीवी के माल में खाविंद का फिर कितना हिस्सा होगा? आधा होगा। लेकिन अगर औलाद थी बीवी की, ठीक है, चाहे उस शोहर से थी चाहे किसी और शोहर से थी, तो उस सूरत में शोहर को कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल है। मैं यहाँ स्टॉप करूंगी इसलिए कि आगे की जो तफसीलात हैं वो सारी डिविजन्स हैं और वो उसमें फिर आप लोगों को थोड़ा फ्रेश माइंड चाहिए समझने के लिए। तो लेकिन यहाँ तक जो कुछ मैंने बताया तो आई होप कि आप लोगों के लिए कुछ फायदा मंद था। तो आप लोग किसी के ध्यान में कोई सवाल है तो आप अभी पूछ लें इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर हम इसको इंशाल्लाह मैं फिर कोशिश करके इसको मैं ख़त्म कर दूंगी, या तो नेक्स्ट वीक ख़त्म कर दूंगी या ऐसे कुछ कर लेंगे। तो आप लोग सवालात हैं तो मुझसे सवालात कर लें। किसी का कोई सवाल है? अगर आप लिखते हैं उसमें अपना सवाल। देखिए, इल्म हासिल करने का एक तरीका ये होता है कि इंसान है ना कभी भी परेशान नहीं हो जाए कि मुझे ये बात समझ नहीं आई, ठीक है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हमेशा जरूर समझ आता है। बात चीजों के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है कि इंसान के जहन में सिंक होती है। बाप अपनी जिंदगी में अपना हिस्सा अपने किसी बेटे को दे सकता है? देखिए, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। इंशाल्लाह असल में देखिए ऐसा है, माल के बारे में अल्लाह ने ये बहुत, चूंकि इससे फितने होते हैं, तो माल के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत स्ट्रिक्ट हमें कानून दिए हैं, ठीक है। अच्छा, तो विरासत तो सिर्फ उसी वक्त तकसीम होती है जब इंसान मरता है और वो अल्लाह के कानून के तहत होता है। अब इंसान अपनी जिंदगी में सपोज एक आदमी के 4 बेटे हैं, लेकिन वो अपने एक बेटे को कुछ देना चाह रहा है किसी भी रीजन से, ठीक है, कि चाहे वो बेटा चूंकि वो बहुत गरीब है इसलिए उसको देना है, या वो बेटा कुछ बीमार है वो कमा नहीं सकता इसलिए देना है, ऐसी कोई भी वजह है ना, तो इसके लिए बाप जो है अपने किसी एक बेटे को देकर दूसरों को महरूम इस तरह नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी में इंसाफ जरूरी है, सारे बच्चों को इक्वली देना जरूरी है कि अगर आपको कुछ एक बच्चे को देना है तो सारे बच्चों को, चाहे फिर उसमें लड़के लड़कियों की भी तमीज नहीं है, लड़के 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, आपको एक को कुछ देना है, आपको चारों को बराबर बराबर हिस्सा देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि लड़कों को डबल और लड़कियों को आधा दो। अपनी जिंदगी में आपको माल तकसीम करना है तो आप हमेशा इक्वालिटी जरूरी है तमाम बच्चों में। अच्छा, अब कुछ स्पेशल कंडीशन है कि किसी बच्चे के साथ ऐसे हैंडीकैप है कि हमें पता है कि वो इस काबिल नहीं है और दूसरे बच्चे माशाल्लाह वेरी वेल ऑफ हैं, सेट हैं। अब उस सूरत में क्या करें? उस सूरत में इंसान अपने सारे बच्चों से मशवरा करे, अपने शौहर से मशवरा करे, बीवी से मशवरा करे और सबकी दिल की खुशी के साथ उस बच्चे के लिए कोई ऐसा सेटअप कर सकता है कि वो बच्चा उसके मौत के बाद महरूम, उसका बंदोबस्त होता जाए। या फिर देखिए, ये तो आज का माशरा ऐसा हो गया ना कि बहन भाई एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, या मतलब औलाद माँ बाप का नहीं रखते। लेकिन इस्लाम का माशरा, जब इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि अगर हमारा कोई ऐसा भाई है जो अपना कमा नहीं सकता, हमें उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। इसी तरह हमारी माँ है, उसका कोई करने वाला नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी है हम उसके लिए अखराजात उठाएं। तो पहले तो ये सूरतें होती नहीं थी, लेकिन अब ये है माशरा कि हम किसी पर भरोसा नहीं होता इंसान को कि हमारे मरने के बाद हमारे इस बच्चे का कोई ख्याल रखेगा। ऐसी सूरत में आप अपनी ज़िंदगी में सारे बच्चों के साथ, सारे शौहर के साथ मशवरा करें और सबकी दिल की खुशी के साथ
جو ہے اس بچے کے لیے کوئی ایسی چیز مقرر کرے، لیکن سارے بچوں کو محروم نہ کر دے، ٹھیک ہے، کہ سارا مال اس بچے کو دے دیا، ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اس کو کوئی خاص سیٹ اپ اس کے لیے کرنے کے لیے آپ انتظام کر سکتے ہیں اسپیشل کنڈیشنز میں، ساری فیملی کے مشورے سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سعدیہ یہ بات کلیئر ہو گئی؟